Hello everyone, I'm Tamanna, and this is our first podcast in the podcast series of Connect with Our Customers, where we connect with our customers, our fellow users, and know their spiritual journey and thoughts on spirituality, where we ask them their journey, how they have started on spirituality, and since the motto of Avya is to help people grow spiritually. Today we have our guest, Mr. Ghanshyam Prasad, who has more than 30 years of experience in automotive industry, and we would like to start with him. So, sir, पहले आप अपना introduction दे दीजिए. Thank you. Thank you very much for giving me the opportunity to express on the spirituality. Let me introduce first about myself. I'm Ghanshyam Prasad Sharma. Basically I'm an automotive professional. I'm a mechanical engineer. I always inclined towards more towards the spirituality and the worship, as I belong to the family, Hindu family, who mostly incline for the worship of the God and different kind of spirituality. जैसे कि हम हिंदू समाज से आते हैं, तो हम पूजा और हमारा जो भक्ति भाव हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हमारी फैमिली से जुड़ा हुआ है. हम हमेशा जो है भक्ति भावना की तरफ जुड़े रहते हैं, भगवान की पूजा और उसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन हमारा हमेशा से रहा है. तो आपने जैसे बताया कि आप प्रे करते हो, तो आप रोज प्रे करते हो? यस. आपका क्या थॉट रहता है जब आप प्रे करते हो? रोज सुबह पूजा करने से क्या है कि जो है मन एकदम शुद्ध हो जाता है और उससे एनर्जी मिलती है और जो मन हमेशा शांत रहता है, और उसके बाद फिर हम अपना काम जो है ना फुल एनर्जी के साथ कर सकते हैं. तो एक हमारे भाव जो है वो पूरा दिन हमारे शुद्ध रहते हैं, नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो नहीं आते हैं. उससे हमेशा शरीर जो है वो फुल एनर्जी और पॉजिटिव थॉट्स के साथ में भर जाता है. अगर हम डेली इसकी एक रूटीन के साथ में शांत और स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ भाव से हम अगर पूजा करते हैं, तो इससे हमारा मन प्रफुल्लित रहता है और एनर्जी बढ़ जाती है. ये तो वैसे अच्छा थॉट है कि मतलब हमारी सारी जो पॉजिटिविटी है वो एक साथ इकट्ठा हो जाती है एंड हम उस पर फोकस कर पाते हैं. बिल्कुल. तो आप अपनी लाइफ में लाइफ एक्शंस पे ज्यादा बिलीव रखते हो या फिर उसके रिजल्ट्स पे आपका बिलीव रहता है? I more believe on the actions. कि whatever actions you take, that should be full of positive thoughts, full of encouragement and enthusiasm. My believe in that way कि whatever you do, if you are doing with the full encouragement, full enthusiasm, and then you forget about the result, definitely result will come and you will grow further in your life if you doing your work with full energy and full positive thoughts. So I always be focus on the positive thoughts and work on my actions and then forget about the result. There is a famous phrase which I have been driven by myself कि do your best honestly, leave the rest on the destiny. अच्छा, आपने अभी पॉडकास्ट से पहले एक बात बोली थी कि मतलब आप अपने बच्चों को बचपन से ऐसे बोलते थे कि ऑलवेज रिजल्ट्स मैटर्स, तो उस पे आपका क्या थॉट है? Yes, मतलब एग्जाम दे रहे हो तो रिजल्ट मैटर्स. Absolutely, result always matter because in life, whatever your actions, how your action will reflect. Your action will reflect through your result only. So it doesn't mean कि but you have to give your best. You have to give your full while preparing or while doing any work, and then you can rest about the destiny. Definitely result will be better, but ultimately result also matters sometimes because in front way your result will only deflect and give your accurate picture. If you have taken any entrance, तो उसमें आपका रिजल्ट ही मैटर करता है कि आपका रिजल्ट कितना आया. अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, बहुत मेहनत की, अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो उसके लिए आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा. लेकिन उससे हमें डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है. उसके लिए हमें अपने आप को फुल मोटिवेट रखना है और फुल एंथुजियाज्म के साथ में फिर से हमें अपनी जो है ना मेहनत करनी है और वर्क पे फोकस करना है. ठीक है. तो अगला मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपके पास आपका कोई ऐसा लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट है जब आप वर्शिप कर रहे हो या आप सपोज पूजा कर रहे हो जो आपको हमेशा याद आएगा कि मैं हमेशा ऐसा करता था, या बचपन में मैंने अपने फादर के साथ गया तो ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा कुछ इंसिडेंट याद है आपको?
हाँ, शुरू जब मैं छोटा था तो उस समय अपने पिताजी के साथ में हम आर्य समाज मंदिर जाया करते थे। वहाँ पर आर्य समाज मंदिर आर्य समाज की जो एक प्रचलन है वो हवन करते हैं वहाँ पे। तो हम हवन में बैठते थे, उसके गायत्री मंत्र हम पढ़ते थे, उसको रेगुलर प्रैक्टिस में भी लेके आते थे। तो वो एक माहौल ऐसा होता है जिसमें हमें है ना बहुत अच्छा फील होता है, एनर्जी आती है, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं और उससे हमें और अच्छा करने का प्रयत्न कोशिश करने का एक हमें आइडिया आता है कि यस हाँ हमें अपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमेशा इंक्लाइन। हमारा सनातन धर्म भी यही कहता है, हिंदू धर्म भी यही कहता है, वी हैव टू बी एक्टिवली प्रे for our rituals and we have to be involved fully in our rituals, जो कि हमें एनर्जी देता है। इसका साइंटिफिक रीजन भी रहता है कि जो कि हमारे पूर्वजों ने इसको हमें बताया है कि कोई भी हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारी वर्शिप है, जो हम पूजा करते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजन भी जुड़ा हुआ है, जो कि बहुत पहले से। साइंस तो हमारे बाद में शुरू हुए हैं, जो कि पाश्चात्य सभ्यता के साथ में, लेकिन हमारा जो विज्ञान है, जो हमारी पुरानी पद्धति है उसकी विज्ञान की, वो हमारी पूजा अर्चना के साथ में बहुत पहले से जुड़ी हुई है। हाँ, जैसे कहते हैं कि जो फायर एलिमेंट है वो आपकी पूरी इम्प्योरिटीज को शुद्ध कर देता है, तो हवन का वो एक चीज है जो जिसमें फायर एलिमेंट की वजह से चीजें आपकी प्योरीफाई हो जाती है, राइट? बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे एक और इंसिडेंट याद आया कि मुझे ये कहाँ से सीख मिली कि पूजा करना है हमें और कैसे पूजा करनी है और किसकी पूजा करनी है। क्योंकि मुझे अच्छे याद है जब हम छोटे थे परिवार में, हम अपने भाई बहनों के साथ मिल करके, हमारे पिताजी जो हैं वो खुद से दिवाली की पूजा करते थे। सारा सामान पहले अरेंज करके रखते थे, जैसे फूल हो गया, फल हो गए और भगवान की प्रतिमाएं होगी, लक्ष्मी जी गणेश जी की, और उसके साथ में हम पूरी चौकी जो है वो सजाते थे। तो ये सारी सीख मुझे मुझे अपने पिताजी से मिली है कि कैसे हमें पूजा करनी है शुद्ध भाव से। तो जहाँ हम मंदिर के सामने बैठ के पूजा करते थे तो वहाँ पे पहले हम अच्छे से उसको साफ करते थे, उसको फिर हम आसन बिछाते हैं, जो कि एक पूरा तरीका है पूजा का। पूजा का तरीका ये है कि हमें कभी भी खड़े खड़े पूजा नहीं करनी चाहिए। मंदिर के आसपास का वातावरण हमारा स्वच्छ होना चाहिए, प्रॉपर उसके अंदर कालीन बिछा करके, आसन बिछा करके, फिर उसके ऊपर हमें बैठ के पूजा करनी चाहिए। फिर हम सबसे पहले पूरा जो स्थान उसको साफ करते हैं, फिर उसके अंदर हम भगवान की प्रतिमा रखते हैं, वहाँ पे जल छिड़क के, वहाँ पे मैंने ये सब सीखा कि कैसे हमें उनको अर्पण करना चाहिए। फिर हम फूल अर्पण करते हैं, फिर फल अर्पण करते हैं, फिर सुगंधित अलग अलग तरह की हम धूप अगरबत्ती जो है वो हम लगाते हैं। तो धूप अगरबत्ती क्या है कि वो एक पूजा का बहुत ही महत्वपूर्ण उसका प्रयोजन है, क्योंकि उसके बिना आपकी कोई पूजा हो नहीं सकती है। तो पूजा के लिए धूप अगरबत्ती जोत इन सबको बहुत अधिक महत्व है। और हमें सब वो शुरुआती पूजा की जो है, हमें अगरबत्ती जला करके फिर हम जोत जलाते हैं उसके अंदर, तो जोत जला करके वो सब हम पूजा को संपन्न करते हैं। पुराने टाइम में तो जब हम गांव में जाते थे तो वहां पे तो हम उपले होते थे, कंडे होते थे, तो उसके अंदर हम उसको भोग अर्पण करते थे। लेकिन आजकल शहरों में क्या है कि ये सब चीजें आसानी से मिलती नहीं है, उपलब्ध नहीं होती है। .com पे मिलती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कपूर है, कपूर एक उसमें लेकर के उसके ऊपर भोग लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो है वो पूरी पूजा संपन्न होती है। तो मुझे पता चला है कि हाँ आव्या है, आव्या एक यंग जनरेशन जो है, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने अपना शुरू किया है। तो इस सब को देखते ही, ये लोगों की समस्याओं को देखते ही उन्होंने एक नया सेटअप स्टार्टअप शुरू किया है, जिससे कि सबको एक ही प्लेस के ऊपर सारी चीजें बड़ी आसानी से मिल जाएं, चाहे वो धूप अगरबत्ती है, चाहे वो कपूर है, चाहे जोत है। और अब तो मुझे ये पता चला है कि आपने उपले भी, कंडे भी रखने शुरू कर दिए हैं और हवन कप भी रखने शुरू कर दिए। ये बहुत अच्छा आपने एक इनिशिएटिव लिया है, जो तो गांव में अवेलेबल है और शहरों में अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, और शहरों में इतना किसी के पास टाइम भी नहीं होता कि जाकर के वो ढूंढ के लेके आए। तो ये आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। आपने एक प्लेटफॉर्म पे आपने सारी पूजा की सामग्री और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड सारी व्यवस्थाएं आपने कर रखी हैं। इवन ऑनलाइन भी हम मंगा सकते हैं। तो इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव एंड आई विश यू ग्रो वेरी फास्ट एंड एक्सपोनेंशियली यू ग्रो इन दिस फील्ड, जिससे कि सिर्फ आपका ही ग्रोथ नहीं हो और सराउंडिंग्स में
जो हमारे इम्पैक्ट है इम्पैक्ट है और जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी भी ग्रोथ हो, साथ में उनको इजीली ये सारी सामग्री मिल जाए और कहीं परेशान होने की जरूरत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने बताया कि आपका 25 to 30 इयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, तो आप बहुत अपने प्लान्स भी लिखते होंगे, आप मैनेज भी करते होंगे, तो आपकी लर्निंग क्या है जो आप हम जैसों को प्रोवाइड कर सकते हैं? ये बहुत लंबी जर्नी रही है, लेकिन जो मैंने अपने सीनियर से और अपने मेंटर से जो सीखा है और जो मेरा भी अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि एक ही इसमें थंब रूल है आपका जो सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी आप जब काम कर रहे हो तो उसमें उस काम में परफेक्शन लेके आओ। परफेक्शन बहुत जरूरी है। तो आई एम फॉन्ड ऑफ परफेक्शन एंड समटाइम माय कोलीग्स और माय सीनियर्स यू टू कॉल मी मिस्टर परफेक्शनिस्ट। आप कोई भी काम करो उसमें पहले आप अपने प्लानिंग करो, थॉट्स डालो उस काम को करने से पहले। ये कहते हैं ऑलवेज देयर इज अ रूल ऑफ 80-20 कि whenever you are going for any new project or any new activity, always there is a rule of 80-20 follows। आपका 80% टाइम जो है वो आपको प्लानिंग में देना है। जिससे कि क्या है कि आपका प्लानिंग अगर परफेक्शन है तो आपका रिजल्ट जो है वो भी परफेक्ट होगा, बेटर होगा। तो देन यू नीड टू गिव ओनली 20% टाइम इन द एग्जीक्यूशन। तो योर मोस्ट ऑफ द टाइम शुड गो देयर इनटू द 80% प्लानिंग and then 20% execution। So this is the main thumb rule or main I can say important rule of the success। और दूसरा always focus on the perfection। आप अपने टाइम को मैनेज कैसे करते हैं? मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, आपके पास मल्टीपल टास्क होते हैं, पर हमारे पास तो लिमिटेड टाइम है, तो आप उस चीज को कैसे मैनेज करते हो? इस चीज को मैनेज करने के लिए एक सिंपल सा रूल है जो कि फॉलो करना चाहिए, लेकिन बहुत सी पब्लिक जो है फॉलो नहीं करती है। चाहे उनको लगता है कि हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम की कमी है। एंड ऑफ द डे आप अपना जो है अगले दिन की प्लानिंग कर लीजिए। अगले दिन के क्या मुझे काम करने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अपनी टू डू लिस्ट में बना के रखिए। जिससे क्या होगा कि कल आपको क्या करना है वो आपको थॉट्स एक दिन पहले, जब आप शाम को अपना ऑफिस, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो अपना वर्क प्लेस है, चाहे कोई कॉर्पोरेट में आप काम कर रहे हो, तो शाम को जब आप ऑफिस क्लोज करके घर की तरफ जा रहे हो तो जस्ट 5 से 10 मिनट का टाइम आप अपनी उस प्लानिंग पे लगाइए अगले दिन की। मतलब मुझे अगले दिन क्या करना है वो आप लिख लीजिए और उसमें से आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि इन 5-7 कामों में से सबसे इंपॉर्टेंट काम मुझे कल कौन सा करना है। मतलब जब हम लोग लीव कर रहे हैं अपने ऑफिस को, घर की तरफ जा रहे हैं, उससे 5-10 मिनट पहले हम अपना नेक्स्ट डे को प्लान कर लें। एब्सोल्युटली, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपका बिजनेस की तरफ क्या थॉट है? जैसे आप कॉर्पोरेट में रहे हैं, तो आपका बिजनेस की तरफ क्या थॉट है, और क्या आप एक टिप है जो आप हम जैसे फाउंडर्स को दे सकते हैं? तो हर उसमें बिजनेस के बिना लाइफ चल नहीं सकती है। चाहे कोई छोटा बिजनेस है चाहे कोई बड़ा बिजनेस है, अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो जॉब किसी बिजनेस के लिए ही कर रहे हो। तो बिना बिजनेस के तो सब कुछ मतलब इम्पॉसिबल है। तो मैंने भी ये विचार किया, सोचा कि इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद अगर मैं आज छोड़ता हूँ तो मुझे फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मेरी यंग जनरेशन के लिए यही एक इम्पोर्टेंट सीख है, इम्पोर्टेंट पॉइंट में है, इम्पोर्टेंट सजेशन मैं देना चाहता हूँ कि इफ यू आर स्टार्टिंग योर बिजनेस इन अर्ली एज, दो देयर वुड बी वेरियस चैलेंजेस, आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इनिशियली हो सकता है आपको 1 साल 2 साल 3 साल सेटअप होने में लग जाए। वंस यू हैव सेटअप योर बिजनेस एंड इट्स ग्रोइंग, देन इन लॉन्ग रन इट विल ग्रो वेरी एक्सपोनेंशियली। और जब आप देखोगे कि 25 साल के बाद आपका जो बिजनेस है वो एक बहुत अच्छे से ग्रो कर गया है, और उसके बाद जब आपकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उन नेक्स्ट जनरेशन को आपके बिजनेस में आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। करेक्ट। उस जनरेशन को वहां से स्टार्ट करना है जहां पे आप उस लेवल तक ग्रो करके जा चुके हो। मैं एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ आपके साथ। आज एक पर्सन आए थे, वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए हैं। वो किसी कंपनी के स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में काम करते थे। फिर उन्होंने वो कंपनी छोड़ी, वो गो मैकेनिक के साथ कनेक्ट हुए
एज स्पेयर पार्ट हेड्स, जब उन गो मैकेनिक ने स्पेयर पार्ट्स शुरू किया था। तो उन्होंने बताया कि जब मैं अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को छोड़कर स्टार्टअप में गया तो मैं पहले घबरा गया कि मैं तो इन बच्चों के साथ रह नहीं सकता, ये तो मतलब कैसा एनवायरनमेंट है, ये कोई कहीं भी बैठा हुआ है, ना कोई प्रॉपर प्लेस है, बिल्कुल गोदाम सा बना रखा है, कैसे काम करेंगे यहाँ पे। उनको 2 हफ्ते में उनको ये फील हो गया कि भले ही जगह अच्छी नहीं है लेकिन जो माइंडसेट है, हाँ, मतलब मुझे ये पता ही नहीं था कि लोग इतने इतने लेवल में भी काम हो सकता है। मैंने सिर्फ अपनी पूरी जिंदगी स्पेयर पार्ट्स में निकाल दी। जब मैंने गो मैकेनिक ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि बाइक एसेसरीज भी कोई चीज होती है, बाइक की फ्रेंचाइजी भी हो सकती है। मतलब उन्होंने अपना इतना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया और फिर उन्होंने 3 साल वहां पे काम किया। तो नाउ ही इज हैविंग अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद देम। यही होता है कि जब हम मतलब स्टार्टअप और कॉर्पोरेट में ये डिफरेंस फील किया उन्होंने। कॉर्पोरेट में क्या होता है, आप चाहे किसी भी लेवल तक, आप चाहे एमडी उसमें डायरेक्टर लेवल तक पहुंच जाओ, यू आर बाउंड टू डू समथिंग विद इन द गिवन रूल्स, विद इन द गिवन कंडीशंस। बट इन केस ऑफ योर ओन बिजनेस यू आर बाउंड, यू आर फ्री टू डू एनी न्यू थिंग्स, न्यू इनोवेशन, जिससे कि आप अपने आपको और ग्रो कर सकते हो और देयर इज नो बाउंड्रीज। बिल्कुल, जैसे स्पिरिचुअल इंडस्ट्री को हम बिल्कुल समंदर मानते हैं कि बहुत बड़ा समंदर है, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी। मतलब हमने स्पिरिचुअल सर्विसेज स्टार्ट कर लिया, कुछ भी। आपका क्या थॉट है स्पिरिचुअल इंडस्ट्री को लेकर? आज के टाइम में देखें तो नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड पीपल आर मोर इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी, और धीरे धीरे ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका ट्रेंड बढ़ रहा है सबका। क्योंकि जब हम देखते हैं ना दुनिया के अंदर अलग अलग जगह पे लोग स्ट्रेस्ड हैं, कई तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी इज द ओनली थिंग वेयर यू कैन रिलीव योर सेल्फ। जब आप एक ध्यान से बैठते हो कुछ टाइम के लिए तो आप सब कुछ भूल करके खाली उस पर फोकस करते हो, जिससे फिर आपको जो है ना अंदर से बड़ा आपका मन शांत हो जाता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है और एक नई एनर्जी का एहसास होता है। हाँ जी। तो धीरे धीरे जो है ना पब्लिक जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रही है और डेफिनेटली ये जो फील्ड है वो और ग्रो करेगा। तो इसमें आज के टाइम में बहुत कम जो यंग जनरेशन है वो स्पिरिचुअलिटी बिजनेस की तरफ आ रही है। तो इट्स अ गुड टाइम टू एंटर इन द स्पिरिचुअलिटी बिजनेस एंड डेफिनेटली इट विल ग्रो इन द कमिंग फ्यूचर। एक फाइनल क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने अपनी 20s से 30s में बहुत सारी चीजें करी अपनी पर्सनल लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। तो ऐसी कुछ गलतियां होंगी, कुछ चीजें होंगी जिसको शायद आपको रिग्रेट भी होगा। तो अगर आपको मौका मिले पास में जाके उनको ठीक करने का, तो आप क्या लेसन्स लेकर अपने पास में जाएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा किया आपने। कि जब मैं अपने पूरे प्रोफेशनल लाइफ को देखता हूँ, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि कनेक्टिंग विद द पीपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में ज़्यादा पीपल्स के साथ में कनेक्ट नहीं बनाया है, कनेक्शन नहीं बनाया है, जो कि किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे वो बिजनेस में हो, कॉर्पोरेट में हो, पीपल कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी भी स्टेज पे, किसी भी सिचुएशन में आपके अगर अच्छे कनेक्शन रहे हैं तो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आप किसी भी सिचुएशन में अगर फंस गए हो, अगर आपके कनेक्शन अच्छे हैं, आपके फ्रेंड्स अच्छे बने हुए हैं और बहुत सारे फ्रेंड अलग अलग फील्ड के अंदर हैं, तो आप उनको से कनेक्ट करके उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करके उसको रिजोल्व कर सकते हो। तो मेरी यही एक सीख है सबके लिए कि आप अपने कनेक्शन बनाओ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हो डिफरेंट फील्ड के अंदर। और इसका ये भी प्रभाव रहता है कि आप जितने अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन बनाओगे, जितने बड़े लोगों के साथ कनेक्शन बनाओगे, आपका जो है ना एरिया उतना ही ग्रो करेगा, उतना ही बढ़ेगा। तो हमेशा अच्छे लोगों के साथ में आप अपने कनेक्शन बनाओ, अच्छे लोगों के साथ बैठो, वैसे ही आपका जो है ना ग्रोथ होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मेरे लिए रही है, जो कि देयर इज नेवर एंड ऑफ लर्निंग एट एनी स्टेज और एनी फील्ड। तो आई एम ऑल्सो लर्निंग स्टिल in this field कि how to connect people, how to make friends and people connection better. Thank you. चलिए, thank you to all my audience and thank you sir, आपसे कनेक्ट करके बहुत अच्छा लगा and we wish कि हमारे साथ आपका एक और पॉडकास्ट आए
एंड हमारी जो ऑडियंस है उनको भी आपका पॉडकास्ट पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इसके लिए डेफिनेटली मैं आगे भी मुझे मौका मिलेगा बोलने का तो मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। धन्यवाद।